Hi folks, so this is GA plus ESI of the fourth week of June. Nasha Mukt Bharat Abhiyan. The Department of Social Justice and Empowerment is celebrating the International Day Against Drug Abuse and Illicit Traffic on 26 June through nationwide awareness events under Nasha Mukt Bharat Abhiyan. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Theme for this year, Break the Cycle, hashtag Stop Organized Crime. हेल्पलाइन में क्या है? टोल फ्री हेल्पलाइन 14446 हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर डी एडिक्शन सपोर्ट प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड रेफरल्स। ठीक है, 14446। नशा मुक्त भारत अभियान का हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर डी एडिक्शन सपोर्ट प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड रेफरल्स। प्रोजेक्ट एलिफेंट, द यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज chaired the 21st steering committee meeting of Project Elephant to review conservation efforts and address human-elephant conflict. ठीक है, chaired the 21st steering committee meeting of the Project Elephant to review conservation efforts and address human-elephant conflict. Future plans क्या है? World Elephant Day to be celebrated on August 12, 2025 in Coimbatore, Tamil Nadu. World Elephant Day to be celebrated on August 12, 2025 in Coimbatore, Tamil Nadu. Start of 3-year elephant tracking study in Bandhavgarh Tiger Reserve. The World Elephant Day to be celebrated on August 12, 2025 in Coimbatore, Tamil Nadu. ठीक है। हम्म, फिर CPWD लेबर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड स्किल सर्टिफिकेट्स टू वर्कर्स trained under the CPWD labor skill training program conducted in collaboration with National Real Estate Development Council, NAREDCO। ठीक है, conducted in collaboration with National Real Estate Development Council, NAREDCO। CPWD labor skilling training program है। Contractors must ensure 20% certified skilled workforce in projects over 10,000 crore or provide on-site training। Construction technology में क्या है? Utilized aluminum shuttering and self-compacting concrete, one of 6 modern technologies identified by the Ministry of Housing and Urban Affairs, MoHUA। ठीक है, Utilized aluminum shuttering and self-compacting concrete, one of 6 modern technologies identified by the Ministry of Housing and Urban Affairs। उसके बाद है माय भारत वाला, तो यूथ अफेयर्स के लिए है। नव्या पायलट इनिशिएटिव फॉर स्किलिंग एडोलेसेंट गर्ल्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नव्या नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स इनिशिएटिव। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया launched the Navya Nurturing Aspirations through Vocational Training for Young Adolescent Initiative, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, to empower and adolescent girls with vocational skills in non-traditional sectors। पायलट फेज में 9 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 9 स्टेट्स कवर होगा। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। महाराष्ट्र इधर, गुजरात उसके ठीक ऊपर, कर्नाटका इधर, पंजाब, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो नव्या एक पायलट इनिशिएटिव है फॉर स्किलिंग एडोलेसेंट गर्ल्स, नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। ये है पायलट फेज। 9 डिस्ट्रिक्ट 9 स्टेट में हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड हिमाचल प्रदेश। फिर 25th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल। तो यूनियन होम मिनिस्टर चेयर द 25th सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग इन वाराणसी, UP, organized by the Interstate Council Secretariat in collaboration with the UP government। 5 zonal council in Northern Zonal Council, Central Zonal Council, Eastern Zonal Council, Western Zonal Council, South Zonal Council। ठीक है, नॉर्दर्न, सेंट्रल, फिर ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, ये सारे 5 जोन है। ठीक है, चेयरमैन है यूनियन होम मिनिस्टर फॉर ऑल 5 जोनल काउंसिल्स। वाइस चेयरमैन है चीफ मेंबर ऑफ अ मेंबर स्टेट, रोटेटेड एनुअली। ठीक है, तो जो भी मेंबर स्टेट है उसका चीफ मिनिस्टर और चेयरमैन है यूनियन होम मिनिस्टर फॉर ऑल जोन्स। 25th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल। ठीक है, SCO के बारे में है कि उसका सेक्रेटेरिएट बीजिंग, चाइना में। चाइना इज द होस्ट ऑफ SCO सेक्रेटेरिएट। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम फुल टाइम मेंबर्स ऑफ SCO इन 2017। 2017 में बना था ये लोग फुल टाइम मेंबर। ठीक है, 2023 में प्रेसिडेंसी इंडिया के पास था। इंडिया इज फर्स्ट एवर प्रेसिडेंसी ऑफ SCO। 2024 में कजाकिस्तान एंड 2025 में चाइना के पास था। तो 2023 में इंडिया फर्स्ट एवर प्रेसिडेंसी ऑफ SCO। 2024 में कजाकिस्तान, 2025 में चाइना के पास। इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना।
ठीक है। एससीओ का, चाइना इज द होस्ट ऑफ एससीओ सेक्रेटेरिएट। एससीओ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन। उसके बाद इम्पोर्टेंट सा आता है सीबीडीटी परफॉर्मेंस एंड रिफॉर्म्स रिव्यू। तो डायरेक्शंस बाय फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में क्या है कि इम्प्रूव ग्रीवेंस रिड्यूसल ऑन सीपीग्राम, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एंड ई निवारण। ई निवारण क्या है? डेवलप्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन 2016। एंड यहाँ टाइम लिमिट फॉर रिड्रेसल है 30 days आफ्टर द कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड। तो ई निवारण हो गया सीपीग्राम्स का जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसको इम्प्रूव करना। Household Income Survey, the National Sample Survey, Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI has announced the launch of a comprehensive All India Household Income Survey. तो NSS, जो Ministry of Statistics and Program Implementation, has announced the launch of a comprehensive All India Household Income Survey scheduled for 2026, 2023 के लिए scheduled है। ठीक है, guided by technical expert group chaired by Dr. Surjit S. Bhalla। Index of Industrial Production, उसके बारे में कुछ है नहीं, बट माइनिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा है। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा है, माइनिंग सेक्टर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। ठीक है। एमएसएमई रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो एमएसएमई रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या है? वो सेलिब्रेट्स ओवर 6.3 करोड़ एमएसएमईज इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटिंग 30% टू जीडीपी, 45% टू एक्सपोर्ट, है ना। 45.73% एक्सपोर्ट्स था, 30 एंड 35% कुछ एक्सपोर्ट्स में, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में है। 51% of MSMEs operate in rural areas, spanning manufacturing, trading, trading and services। तो 51% जो है एमएसएमई ऑपरेट करते हैं रूरल एरियाज में, उसमें ट्रेडिंग ज़्यादातर है। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज, फिर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एमएसएमई 30% अराउंड कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, 45% एक्सपोर्ट्स में, और 35 पॉइंट कुछ परसेंट है विच कंट्रीब्यूट करता है वो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में। ठीक है, 51% एमएसएमईज जो है वो रूरल एरियाज में ट्रेडिंग करते हैं मैक्सिमम लोग। लॉन्च ईयर उद्यम असिस्ट पोर्टल, इसका लॉन्च ईयर 2023 एमएसएमई के लिए है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। उद्यम असिस्ट पोर्टल, ठीक है, सिडबी ने किया है। सिडबी असिस्ट किया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के लिए यशस्विनी कैंपेन launched in 2024, a step towards gender parity by 2029 on the Udyam and Udyam Assist portals। यशस्विनी कैंपेन लॉन्च हुआ था 2024 में, स्टेप टुवर्ड्स जेंडर पैरिटी बाय 2029 ऑन द उद्यम एंड उद्यम असिस्ट पोर्टल। उद्यम असिस्ट किसके? सिडबी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसीव्ड द संकल्प से सिद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनर, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। तो संकल्प से सिद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनर, Inland Waterway Authority of India received the Sankalp Se Siddhi Infrastructure Honor at the ET Edge Supply Chain Management Fest 2025 for its implementation of the Jal Marg Vikas Project JMVP। ठीक है। The Inland Waterways Authority of India received the Sankalp Se Siddhi Infrastructure Honor at the ET Edge Supply Chain Management Fest 2025 for its implementation of the Jal Marg Vikas Project। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर जेएमवीपी। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहा है। संकल्प से सिद्धि ये भी वर्ल्ड बैंक का है, जिसमें जलमार्ग जो जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट के लिए इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर जेएमवीपी वर्ल्ड बैंक कर रहा है। ईपीएफओ इंक्रीजिंग ऑटो सेटलमेंट लिमिट फॉर एडवांस क्लेम्स। Employees Provident Fund Organization EPFO has raised an auto settlement limit for advance claims up to from 1 lakh rupees to 5 lakh rupees। ठीक है, EPFO has raised the auto settlement limit for advance claims ऑफ 1 लाख रुपए से 5 लाख तक है इसका। ठीक है। यूएनएटी इनिशिएटिव, इट फोकसेस ऑन 3 कोर वर्क स्ट्रीम्स। इंटरनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यूएनएटी का इंटरनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, मैंडेट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, स्ट्रक्चरल एंड प्रोग्रामेटिक रिफॉर्म्स। A UNAT task force with 7 thematic clusters: humanitarian aid, development, human rights, training, research and specialized agency leads the effort। ठीक है। तो तीन
फोर वर्क स्ट्रीम है: इंटरनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, मैंडेट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, स्ट्रक्चरल एंड प्रोग्रामेटिक रिफॉर्म्स, a UNAT task force with seven thematic clusters: humanitarian aid, development, human rights, training, research, and specialized leads the effort. NATO का क्या है? NATO में आर्टिकल 10 ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी सेट्स आउट हाउ कंट्रीज कैन जॉइन द अलायंस. It states that membership is open to any European state in a position to further the principles of this treaty and to contribute to the security of North Atlantic area. ठीक है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो मतलब नॉर्थ यूरोपियन स्टेट होना चाहिए. आर्टिकल 5, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस: नाटो इज कमिटेड टू द प्रिंसिपल दैट एन अटैक अगेंस्ट वन और सेवन, जो आर्टिकल 5 है, और one or several of its members is considered as an attack against all. Zhou Ziyai appointed as AIB president. ठीक है, Zhou Ziyai appointed as AIB president. AIIB क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग चाइना. मेंबर्स इसमें 110 है, एक्सक्लूडिंग यूएसए. टॉप थ्री शेयर होल्डर्स है चाइना, इंडिया एंड रशिया. ठीक है, तो ये हो गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग चाइना. मेंबर्स है इसमें 110 एक्सक्लूडिंग यूएसए. टॉप थ्री शेयर होल्डर चाइना, फिर इंडिया, रशिया. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ रिवाइज, फिर स्टेट कैपेक्स आउटलुक ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26. The capital outlay of 26 Indian states projected to rise from 8.7 trillion to 10.2 trillion dollar in FY 26. ठीक है, 26 इंडियन स्टेट्स का जो कैपिटल आउटले है, टोटल कैपेक्स, वो राइज होगा 8.7 ट्रिलियन से 10.2 ट्रिलियन. टॉप कंट्रीब्यूटर्स इन FY 26: यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका. तो यूपी है, फिर गुजरात है, UGMMK. ठीक है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका. MMPK, अंडर ग्रेजुएट में पीके, ऐसे याद रखो, अंडर ग्रेजुएट में पीके. तो यूजी मतलब उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका. ये सब है स्टेट कैपेक्स आउटलुक में. ठीक है, ये लोग टॉप कंट्रीब्यूटर हैं FY 26. उसके बाद अभी इंडिया का एक्सटर्नल डेट क्या है? करेंसी कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेट: सबसे ज्यादा यूएस डॉलर है, उसके बाद इंडियन रुपी, फिर जापानीज येन, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यूरो. ठीक है, इंडिया का करंट अकाउंट बैलेंस Q4 2025, फुल एफर्ट में करंट अकाउंट डेफिसिट 0.6% ऑफ जीडीपी रहेगा. नेट एफडीआई $1 बिलियन, 0.6% ऑफ जीडीपी विल बी करंट अकाउंट डेफिसिट. ठीक है, सो दैट इज इट.